Dear student, welcome back to Dr. Srikanth Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with another important topic, that is a one compartment open model by extravascular route of administration. In earlier video I explained in detail the route of administration with respect to the intravenous bolus as well as the intravenous infusion. So whoever not watched, please watch that video so you can understand very clearly how the drug concentration can be determined by using the compartment model with respect to intravenous bolus injection as well as the intravenous infusion. So in this class we are planned for in detail explanation with the route of the extravascular एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे मैंने समझाया था 1 मिनट 1 मतलब क्या हो जाता है, एक मतलब हमारा जो बॉडी रहता है ना, टोटल बॉडी हम लोग सिंगल कंपार्टमेंट सिंगल कंसिडर करते हैं, मतलब हर ऑर्गन टिश्यू सब मिला को एक ही जो कंसिडर करते हैं ना उसको बोलते हैं 1 कंपार्टमेंट. मतलब क्या हो जाता है, ए ग्रुप ऑफ टिश्यू विच इज हैविंग द सेम अफिनिटी ऑफ द ड्रग टुवर्ड्स. ओके. ओपन मतलब it is a unidirectional मतलब absorption and elimination in a unidirection, that is nothing but input and output will be unidirection. मॉडल जो यूज़ करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए concentration of drug with respect to time, the changes of the drug concentration with respect to time. So that is the reason you are using the model. मॉडल हमेशा हमारे को ये यूज़ करता है ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग कितना है, चेंजेस विथ द टाइम. एक्स्ट्रावेस्कुलर मीन्स इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर देन द आईवी इन्फ्यूजन और आईवी बोलस. जैसे समझ लीजिए ओरल रेक्टल रहने दो. ओके. सो नोविंग दैट द बेसिक इंफॉर्मेशन, लेट मी डिस्कस इन डिटेल द हाउ दिस कंपार्टमेंट मॉडल विल बी हेल्पफुल फॉर determining the blood concentration with respect to time. So whatever the product, when you launched or when you want to study that, when you are administered or taken in by orally, so the absorption process will be takes place with the oral route. So this step is not there in the infusion or the bolus injection administration, but the absorption phase is very much important in case of in the extravascular by the oral route. Upon the absorption, the drug is entering into the compartment that is called as the entire body, all the organs or tissues without the consideration of the vascular or the perfusion. After that the drug is eliminated from the body. So this is the process will be a process when you are administered any doses. You want to analyze the blood samples are collected for the different time of interval and determine the concentration of the drug. So when you plot the graph, जैसे हम लोग प्लॉट करते टाइम वर्सेस द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, आपको ये जो ग्राफ मिलता है ये कर्व मिल जाता है ऐसा. तो ये बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन. और ये जो फेस बता रहे हम लोग इसको नंबर 1 डेसिग्नेट किए, इसका जो फेस बोलते हैं अब्जॉर्प्शन फेसेस. और ये जो बता रहे हम लोग नंबर 2 उसको बोलते हैं पोस्ट अब्जॉर्प्शन फेसेस. और यहाँ पे नीचे बता रहे हैं ना, ये जो कर्व बता रहे हैं ना नंबर 3, इट इज़ एन डेसिग्नेटेड एज एन एलिमिनेशन फेसेस. जैसे ये डोज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर दिए तो इनिशियली एब्जॉर्प्शन फेस ज़्यादा रहता है, एलिमिनेशन फेस थोड़ा कम रहता है. थोड़ी देर के बाद एब्जॉर्प्शन फेज और एलिमिनेशन फेज दोनों सेम हो जाता है. जैसे एब्जॉर्प्शन होता है एलिमिनेशन प्रोसेस भी कंटिन्यूसली हो जाता है. और थोड़े देर के बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बहुत कम हो जाता है, खाली एलिमिनेशन फेसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है. So this graph is clearly indicating that initially the absorption is dominant and later the post absorption and finally the elimination phase will be takes place. So if you want to identify the plasma concentration of a particular drug with respect to particular time of intervals, by using this formula you can be determined. That is the blood plasma concentration equals to F D
0 or DO, okay, K0 Ka Vd into Ka minus Ke, that is an e to the power of minus Ket minus e to the power of माइनस के ए टी। ये जो फार्मूला से हम लोग बहुत ही आसान से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग हम लोग आराम से पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे Cp मतलब क्या हो जाता है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है, F मतलब फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब्ड एंड D0 इज नथिंग बट डोज टेकन बाय ओरली and K is absorption rate constant, Vd is the volume of distribution, K is absorption constant minus Ke, that is an elimination rate of constant. So if you want to determine the Tmax, that is a time taken for the maximum peak concentration, so that can be determined by using a formula that is called as a Tmax equals to 2.303 log of Ka Ke डिवाइडेड बाई Ka माइनस Ke। ये जो फार्मूला से हम लोग बहुत ही आसान से Tmax, द टाइम टेकन फॉर द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज ना पीक कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही आसान से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे ये हो जाता है शॉर्टर द Tmax द फास्टर विल बी द अब्जॉर्प्शन। आप ये समझ लेना, ये अगर हमारा Tmax अगर बहुत कम रहे तो शॉर्ट रहे तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस रहता है ना बहुत ही फास्ट होता है। जैसे एब्जॉर्प्शन फास्ट रहता है सो एलिमिनेशन प्रोसेस इज आल्सो फास्ट। नेक्स्ट कम्स द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कैसा हम लोग डिटरमाइन करना बोले तो जैसे आप प्लॉट कर दीजिए, ग्राफ प्लॉट करें तो टाइम वर्सेस लॉग Cp आपको जो कर्व मिलता है इस तरह से मिल जाता है। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट वन अब्जॉर्प्शन फेस एंड टेल पार्ट इज देयर ना, दैट इज कॉल्ड एज एन एलिमिनेशन फेस। This elimination phase is showing the straight line. With the help of straight line, we can determine the elimination rate constant by using the slope. So normally the slope is calculated by slope equals to minus Ke divided by 2.303. slope को हम लोग designate करते m, ओके। सो माइनस Ke डिवाइडेड बाई 2.303, इससे हम लोग बहुत ही आसान से हम जानकारी ये ले सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट कम्स द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, दैट इज एन एलिमिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। सो हाफ ऑफ द डोज विच इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द आवर बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड एज एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ। आई एम रिपीटिंग, half of the dose which is eliminated from the our body, it is called as an elimination biological half life। बहुत ही सरल से हम लोग T half जानकारी ले सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। T half equals to 0.693 by Ke, ओके। ये फार्मूला से हम लोग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ द एलिमिनेशन हाफ लाइफ बहुत ही आसान से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट द absorption rate constant. Absorption rate constant. With the help of a elimination rate constant, we can also be determined very easily what is the absorption rate of the particular drug constant. So absorption kinetics of drug into blood is given by absorption rate constant, and it's determined by the various methods, or you can say that the method of residual, or the feathering, or peeling, और स्ट्रिपिंग और कर्फ्यूटिंग मेथड। ये सारे चीज़ मेथड है ना, वो हम लोगों को हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कितना है बोल के हम लोग जानकारी लेते हैं। सो ये जानकारी के लिए हम लोग अगर प्लाट किया तो ग्राफ प्लाट किया टाइम वर्सेस लॉग Cp, जैसे हम लोग ये ग्राफ बता रहे थे ना एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, सेम थिंग विच that graph only we can be determined with the help of elimination rate absorption rate constant also. So time versus log Cp, so this is one number is absorption phase and 2 is the elimination phases। जैसे हम लोग ये जो elimination phase का straight line रहता है ना, उसको हम लोग back extrapolate करें तो हमको मिल जाता है extrapolated back line, so that is called as 3। एंड टूवर्ड्स द वाई एक्सिस को हम लोग स्ट्रेट ऐसा स्ट्रेट अगर एक्स्ट्रापोलेट किया तो हमको मिल जाता है, वो लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्ड लाइन, ओके, थर्ड लाइन। सो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लाइन 3 and the corresponding line 1
we get the residual. हमको रेसिड्यूअल अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग कैलकुलेट करना डिफरेंस बिटवीन द लाइन 3 और लाइन 1 जो रहता है ना, सो उससे हम लोगों को रेसिड्यूअल मिलता है. नाउ यू प्लॉट ए ग्राफ यूजिंग द टाइम एंड रेसिड्यूअल. Time and residual, we will get a line that is an 4. So slope of this line is equals to minus Ka 2.303. जैसे ये हम लोग ये एक्स्ट्रापोलेट किए रहते हैं वाई एक्सिस को, अगर हम लोग डिफरेंस कैलकुलेशन किया तो लाइन 3 और लाइन 1 को हमको जो मिलता है रेसिड्यूअल, वो जो रेसिड्यूअल हम लोग प्लॉट किया तो जैसे यूज ऑफ ए टाइम एंड रेसिड्यूअल प्लॉट किया तो हमको मिलता है fourth line. So that is in a straight line. So that is an indication of the our calculation will be done with the straight line by using the slope. So that is an the minus Ka divided by the 2.303. So absorption of half life, जैसे हम लोग elimination half life जानकारी लिया, absorption of half life also we can be determined by simple formula that is 0.693 by Ka. So ये क्लास से हम लोग ये जानकारी लिए, जैसे हम लोग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद उसका ब्लड कॉन्सेंट्रेशन कितना है विद डिफरेंट इंटरवल्स में जानकारी लिया, टी मैक्स के बारे में हम लोग जानकारी लिया, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, टी हाफ ऑफ द एलिमिनेशन, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन, elimination half life. So still few are the pharmacokinetic parameters are there. We will continuing in the next class. Don't forget to watch the next video with the continuation of this model, okay, with respect to extravascular रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मैं ये समझा रहा हूँ आपको, ये क्लास होने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम बना रहे हैं ना, बाकी का जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. आप भूलना मत देखने के लिए ये वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.